Hello friends, let's start with the exercise questions of your investing activity, right? That is your question number 18. From the following information, calculate cash flow from investing activities. We have the information given already, right? So we are not going to prepare any such accounts. Why so? Because we are clearly given with the information कि हमने सेल करा है, परचेस करा है, क्या करा है, करेक्ट. चलो, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसे आएंगे कि जाएंगे? Definitely आएंगे. So over here I'll be writing sale of non-current investments 88,000. Then purchase of land, purchase करा है तो पैसे जाएंगे. Purchase of land 1,48,000. Then purchase of machine 98,000. Again we are purchasing the machine, so पैसे आएंगे जाएंगे? Definitely जाएंगे. Purchase of machine 98,000. As you can see over here, I hope it is clearly visible, right? चलो फिर sale of furniture 45,000. Sale करा, again we are going to get the money. So sale of furniture 45,000. Then dividend received on investments, we have received the money again, so dividend received on investments 40,000. Then paid for goodwill, हमने पैसे पे करे हैं, पैसे जा रहे हैं, राइट? सो paid for goodwill 32,000. Then issue of shares, can I say it is not at all relating to investing activity? याद करो मैंने क्या बोला था, asset side से relate हो तो वो investing में जाएगा. इश्यू करे शेयर्स वो इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा. देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अगेन रिलेटेड टू लायबिलिटी, फाइनेंसिंग में जाएगा. देन लोन बोरोड, अगेन लोन बोरो करिए हमने, लायबिलिटी में जाएगा, तो इट विल गो टू वेयर, financing activity and not in investing activity, correct? So we are done with the investing activity वाला part. सिर्फ प्लस माइनस करो एंड देखो क्या आ रहा है. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी it is minus 1,05,000, correct? So my final answer would be cash flow from investing activity minus 1,05,000. Is it completely clear? Now let's move ahead with next question. Cash flow from the following information, calculate investing activities. Again I am given with two informations, that is your opening information as well as closing information. Plant and machinery 720, 920. Depre fund on plant and machine 120, 150. Goodwill, patent 10%. Investments, general reserve, profit and loss account, equity share capital, bank loan, current liabilities, interest received on investments, and some of the patents were sold during the year. ऐसा कुछ मुझे क्वेश्चन में बोला गया है. Now प्लांट मशीनरी एंड डेप्री फंड ऑन प्लांट मशीनरी, एज आई कैन सी, तो ये दो का अकाउंट्स तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्रिपेयर. गुडविल 95 का 90 हुआ है, मीनिंग देयर बाय राइट ऑफ करिए गुडविल, उसका कुछ नहीं करने वाले हम, करेक्ट. पेटेंट 130 का 70 हुआ है, पर यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द पेटेंट्स वेर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मीनिंग देयर बाय पेटेंट राइट ऑफ नहीं हुए, पेटेंट सेल हुई है, करेक्ट. इतना हमें समझ में आ जाए तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर पेटेंट का अकाउंट. अगर इतना समझ में आ रहा है तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू आर सपोज टू प्रिपेयर द पेटेंट अकाउंट एंड यू आर सपोज टू डू इट, बाकी इट इज फाइन. देन 10% इन्वेस्टमेंट्स इज देयर, 270 है, 95 हुए, अगेन उसका अकाउंट बना के करेंगे. आई नो वी आर इंटेलिजेंट इनफ, क्लेवर इनफ कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई 270 के 95 हुए, मीनिंग देयर बाय हमने इन्वेस्टमेंट सेल करे. स्टिल इफ़ यू वांट, इफ़ यू विश तो यू कैन प्रिपेयर द अकाउंट, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन नॉट. अगर आपको क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि भाई ओके फाइन इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है, पैसे आएंगे, इतना समझ में आए तो नो नीड टू प्रिपेयर द अकाउंट अलग से, राइट. इट इज़ जस्ट एंड जस्ट योर वर्किंग नोट, नथिंग एल्स. तो आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको समझ में आ रहा है क्लियरली क्वेश्चन देखने के बाद. देन जनरल रिजर्व लायबिलिटीज बिलोंग करता है. P&L अकाउंट, इक्विटी शेयर, बैंक लोन एंड करंट लायबिलिटी, इसका तो कुछ करना ही नहीं है,
because all these things belongs to what? Liability. We are not going to do anything about it. Then interest received on investments, that will look into. So let's prepare 3 accounts, rather I can say let's prepare 2 accounts only, plant and machinery and depreciation fund on plant and machinery, just in case. बाकी तो सब समझ में आए वैसे ही. Let's prepare this 2 accounts. So I have prepared plant and machinery account, depri fund account and cash flow from investing activity का मैंने फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर रखा है. Now let's write it. To balance brought down, it is 7,20,000. यहाँ पे लिखेंगे. Definitely it is fund, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन से साइड आएगा? क्रेडिट साइड. इतना हमें पता होना चाहिए. देन ओवर हियर इट इज़ बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 9,20,000. एंड ओवर हियर इट इज़ कितना? 150. टू बैलेंस कैरिड डाउन इट इज़ 1,50,000. करेक्ट. चलो, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कुछ मुझे बैलेंसिंग मिल रहा है. क्या मिल रहा है? 920 था, 720 हुआ है. करेक्ट. सो 9,20,000 माइनस 7,20,000, इट विल बी कितना? 2 लाख का डिफरेंस दैट आई हैव गॉट, मीनिंग देयर बाय डेबिट साइड पे आई हैव गॉट द बैलेंस. सो कैन आई से मैंने परचेज करा होगा, परचेज जो हमने ऑलरेडी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में कर रखा है. करेक्ट. चलो, एंड ओवर ईयर 30,000 का बैलेंस मिला, मीनिंग देयर बाय ये बाय करंट ईयर का डेप्री है जो पीएनएल में जाएगा, जिसकी मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देनी है. ये मैंने क्यों आपको सिर्फ अकाउंट बना के दिखाया? द रीज़न बीइंग, शायद अगर इसमें कुछ सेल रिलेटेड कुछ होता तो डेप्री फंड एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों में उसकी इफेक्ट आती. करेक्ट. बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग. चलो, तो अब क्या करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वी विल बी राइटिंग. राइट, सिंपल सी बात है. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें करनी है. जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है उसका ही सब यूज़ करना है. चलो, सो यहाँ पे पहले तो मुझे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मिला. आई विल राइट दैट परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज देयर 2 लाख, तो वो माइनस कर देंगे. देन मेरे पास क्या है? मुझे बोल के रखा है भाई सम ऑफ द पेटेंट्स वेर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और 130 के पेटेंट्स थे जो अब हो गए हैं 70 के, मीनिंग देयर बाय मैंने 60,000 के पेटेंट सेल कर दिए हैं. सो सेल ऑफ पेटेंट्स 60,000 पैसे आएंगे जाएंगे? डेफिनेटली आएंगे. देन मुझे बोला गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड 18,000. राइट. सो आई विल बी राइटिंग दैट इंटरेस्ट on investments that I have received 18,000 का. करेक्ट. और मेरे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है? सिर्फ और सिर्फ एक 10% इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं. 270 के थे जो अब हो गए कितने के? 95 के. नहीं से अगेन मैंने इन्वेस्टमेंट सेल करे. सो अगेन आई हैव गॉट सम मनी. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 270 के थे, 95 हुए, मीनिंग देयर बाय मैंने 175 के इन्वेस्टमेंट सेल करे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम. सो 1,75,000, दैट्स ऑल. और कुछ तो दिया ही नहीं है जो मुझे काम में लगे. आप अगर अच्छे से क्वेश्चन देखो तो आपको पता चलेगा कि देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा गिवन जो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है. जो कंसिडर करना था वो हमने कर लिया. करेक्ट. सो ओवर हियर इफ़ यू डू द प्लस माइनस ऑफ दिस थिंग तो क्या मिलता है? देखो, लेट मी नो, आई मीन चेक इट आउट. You'll get 53,000 over here, and that will be what? Your cash flow from investing activity. That's all. We don't have any more sum regarding investing activity in this chapter. जितने क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने कर लिए. वी आर डन विद द इलस्ट्रेशंस अलॉन्ग विद द exercise questions also. So I hope you all are clear with the cash flow from investing activity part. Thank you.